पहले तो ये जानना चाहेंगे आपके ये अंगूठे में एग्जैक्टली हुआ क्या है? अरे मैं बहुत नहीं, मैं अंधेरे में मेरा दीवार में हाथ लग गया था। और अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली आर्टिस्ट के हाथ बड़े नाजुक होते हैं। मेरे हाथ भी ऐसे ही बहुत नाजुक है, ज़रा सी चोट लगती है तो लंबी चोट लग जाती है। तो ये 15 दिन पहले हुआ था और अभी तक इसमें बहुत दर्द है। तो आई थिंक इट विल टेक मी 1 मंथ टू गेट इससे एसएमएस नहीं कर पा रहा मैं, और जिप ऊपर नहीं कर पा रहा। हमारे देश में एक फिक्स्ड आइडियोलॉजी है कि प्लेबैक सिंगर होता है। प्लेबैक का मतलब ही क्या है? ये नाम ही अपने आप में एक शापित नाम है, प्लेबैक सिंगर। Why not play front singer? The X Factor is not just about walking the ramp and or acting. It's about music. X Factor is first about music. So basic music knowledge तो होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए। मैं बहुत देर तक एक स्टाइल को अपने सर पे नहीं देख सकता। मेरा ये मानना है कि जब तक बाल हैं खेल लो, कल होना हो। After a gap of 6 years that I've agreed to become a part of a show which is judging adult talents. I've been a part of Little Champs for kids, Chote Star for kids. But in spite of the fact that, very humbly speaking, most 99% of the talent shows that have happened the last 6 years have come to me first. And with all humility, I told them I'm not ready to be a part of it because I don't really believe in, as you know, the dramatization of talent show. I've been, if you know my career for the last, it's my 20th year, I've been kind of a strange singer because most of the singers has always been a certain way. We were supposed to behave a certain way. We were supposed to dress up a certain way. We were supposed to say, Namaste ji, Namaste, kya haal hai sir? Wah, 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 Ishwar ki Bhagwan ki kripa hai. This is how they used to all behave. For the first time, I decided that maybe I started like that earlier. For 3-4 years I would have been like that because I saw my seniors doing this, but then I realized that's not what I am, and I speak up my mind. People who had truth in their souls accepted me. People who did not accept me earlier, they've started accepting me now. And I want to be a part of a show which is as truthful as I feel I am, as rebellious as I feel I am, as contagious as I feel I am. And X Factor has got all those factors. And I'm pretty glad to be a part of it. किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना, खामोश क्यों हो जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, हो तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना। My X Factor is that I imitate a lot of people in singing and in mannerism, but as a person, absolutely true to myself. I'm absolutely original. I do not see myself like anyone else in the world. I have a lot of inspirations in my real life. Music, of course, all my Rafi Sahab to Michael Jackson to Lata ji to Asha ji to Bade Ghulam Ali Khan Sahab to my Ustad Ghulam Mustafa Khan Sahab to Bhim Singh Joshi ji to Ajay Chakrabarti ji, Salamat Ali. As human beings, I idolize a lot of people, but I don't follow anyone. And that's what I believe is the real X Factor. I believe God, I call it Cosmos, has made all of us, equipped us with our own individual personalities. And if I speak fast, I speak fast. I do not want to try to impress you by speaking slow, because speaking fast is in my system and I can't just get over it. I have to speak fast because I think fast. So I am like this. And my X Factor is, I don't work on my X Factors. If I feel, I don't follow styles of fashion. I just do whatever I feel like. I cut my hair the way I want to. I just lead my life the way I want to. And I don't follow them. The news normally follows me. X Factor is something which, it's like X-rays. You can't see them. You just have to feel it from your heart. You will know it. Not just us. If I could explain X Factor, if anybody could explain X Factor, then X Factor would be an available commodity. It's not explainable. You can't explain X Factor. X Factor is something that comes from your honesty to yourself. But I may correct myself. A lot of people can fake X Factor too.
they can present themselves a certain way, they can talk a certain way, and then you might be just interested in knowing that weird and quirkiness of the character. We know a lot of such characters in our day-to-day lives. So what I am saying is I haven't come up with any preconceived notion कि मुझे तो यही चाहिए. I need someone to dress up like this, I need someone to talk like this, and I need someone to sing like this. No. I might find a great, excellent, over-the-top singer who is completely impressionless in front of me, in front of the audience, and we will know it by just their demeanor. And we might see someone who's average, but the hard work or the passion behind his or her craft would overpower or overshadow anybody else's passion. So let's not go, I mean, for myself, I've decided not to go with any preconceived notions. We will know it at the right time. That's what X Factor is. And to groom them, to give them, to facilitate them with things, we have X Factor as a format. The best thing is they provide them a lot of grooming, as their performance presentation, the vocal coaches, choreographers, hairstylists. So all of this would be provided in a very classy and in a very good way. So you will see a lot of people coming a certain way and grooming up to become someone else. But one thing I may assure you, with me in the show, the music content will not go down. We will see to it that vocal is still going to remain the first priority. It is not like we won't compromise on vocal abilities. At least me. You can have any amount of style or anything, but if you cannot decently sing, then you're not allowed to be a singer. You're not authorized to be called a singer. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारी है, ये हमारी एक्स फैक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए है. इसके बाद में हम आपको आहिस्ता आहिस्ता फॉर्मेट को डिस्क्लोज करेंगे. अभी हमें अथॉरिटी नहीं है क्योंकि हम फॉर्मेट को पूरा बताएंगे कैसे क्या होगा, क्योंकि बात फिर पुरानी हो जाएगी. No, there'll be 3 judges and rest of the 2 names will soon come to you. Sir, Jalila Bhansali, I think so. Can't confirm any name just now, but definitely we are in talks with many people. आप सारे गमा पा से जुड़े थे, फिर उसके बाद छोटे उस्ताद, नाउ एक्स फैक्टर. ये जो सिंगर इंडियन आइडल भूल गए. इंडियन आइडल I started Indian Idol. Yeah, you started. तो ये जितने भी शोज होते हैं, इसके बाद जो सिंगर निकलते हैं, लाइक भारत की आवाज या पूरे देश में से एक सिंगर चुना जाता है, वो जाता कहाँ है? इवन एक्स फैक्टर के बाद ये जो चुना जाएगा वो कहाँ जाएगा सिंगर? वेरी गुड क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को मैंने कई बार आंसर किया है, बट जब मैं इसको आंसर करता हूँ मैं खुद क्लियर होता रहता हूँ. क्या है, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर म्यूजिक एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर नहीं है. म्यूजिक एक कॉम्प्लीमेंट्री फैक्शन है सिनेमा का. तो दुख की बात यह है कि कोई भी सिंगर, कोई लड़की हो, लड़का हो, जो भी हो, कोई भी हो जो आगे बढ़ना चाहता हो, उसको पहले ये सोचना पड़ता है कि मुझे को यार फिल्म कब मिलेगी गाना गाने के लिए, कोई मेरा गाना फिल्म में हिट होगा. ये इसी देश में होता है सिर्फ. किसी और देश में ऐसा नहीं होता कि कोई रिहाना या बियॉन्से बोले कि आई वांट टू सिंग फॉर निकोल किडमैन. ऐसा कभी नहीं होगा. सिंगिंग इज अ इंडिपेंडेंट आर्ट. तो इस तरह के शोज, अगर आपको याद हो कि सारेगामा जब मैंने शुरू किया था पहले, उस समय लोगों को पता ही नहीं था कि इंडिया में इतना टैलेंट है. जब वो शो आया तो लोगों को मालूम पड़ा कि इतना टैलेंट है दुनिया में, इंडिया में इतने सिंगर्स हैं. लोग मुझे बोलते थे यार कहाँ से लेके आते तुम लोग. मैं बोलता मैं लेकर तो आते ही नहीं हूँ, हम तो सिर्फ प्लेटफॉर्म देते हैं. आते तो वो खुद है. अगर कोई फेनाटिसिज्म से ग्रस्त देश है, उसको भी बदलने में 1 जनरेशन लगेगी, 2 जनरेशन लगेगी. वैसे म्यूजिक में भी हमारे देश में एक फिक्स आइडियोलॉजी है कि प्लेबैक सिंगर होता है. प्लेबैक का मतलब ही क्या है? ये नाम ही अपने आप में एक शापित नाम है, प्लेबैक सिंगर. व्हाई नॉट प्ले फ्रंट सिंगर? आपको याद होगा कि मेरी भी एल्बम आई थी चंदा की डोली, अभिजीत सावंत की भी एल्बम आई थी, चलिए उसकी ज़्यादा थी. इंस्पायर्ड ऑफ मी बीइंग अ प्ले बैक सिंगर एंड मेरे इतने दीवाना जान याद के बाद में अभिजीत की एल्बम मुझसे ज़्यादा चली थी. क्यों चली थी? प्लेटफॉर्म मिला था. जितनी स्टोरीज आप एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के अराउंड इर्द गिर्द सुनते हैं और बुनते हैं, अगर उससे आधी स्टोरीज भी किसी सिंगर के बारे में बुनी जाए तो वो सिंगर स्टार बनता ही बनता है. 1-2 लोगों ने कोशिश की थी, मैं नाम नहीं लूँगा, अपने इर्द गिर्द बहुत सारी कहानियाँ बनाई, सिंगर थे, कंपोजर, सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन वो चीज़ एक टाइम तक चली, नहीं चल पाई. शोज लाइक एक्स फैक्टर टेक्स marketing of music and singers to some other level. We should understand that music is not just film music. Music is Anup Jalota also, Pankaj Udhas also, Jagjit Singh also, Talat Aziz also, Medicine also, Ghulam Ali also. म्यूजिक तो बहुत बड़ी चीज़ है. सिर्फ हम प्लेबैक सिंगर्स को ही समझते हैं. टाइम्स हैव चेंज कम्प्लीटली. पूरा इकोनॉमिक्स बदल गए हैं, म्यूजिक के, बिजनेस के, मार्केटिंग के. मतलब उस समय व्हेन वी वर डूइंग सारेगामा,
nobody could ever question or even put a question. मतलब not कोई बोल भी नहीं सकता था कि किसी बॉलीवुड एक्टर को जज बना के लाओ सारे गाँव में. We were such passionate and aggressively purist musicians that people appreciated that purism. कि कितने बदमाश हैं कि म्यूजिक को इन्होंने बिल्कुल बिगड़ने नहीं दिया, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं किया जहाँ पे म्यूजिक से ध्यान हट जाए और कुछ और बात पे ध्यान जाए. उसके बाद में 2000 के बाद से एक ऐसा दौर आया है मीडिया में जहाँ पर हर चीज़ कॉर्पोरेट नज़र से देखी जाती है. और मैं तो बहुत ऑनेस्टली बोलता हूँ इस बात को. म्यूजिक म्यूजिक है. जैसे किसी डांस के शो में आप किसी नॉन डांसर को जज बैठा दो, आपको जमेगा क्या? बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं जमेगा. अगर स्पोर्ट्स के शो में आप किसी नॉन स्पोर्ट्समैन को जज बना के बैठा दो कि ये स्पोर्ट्समैन अच्छा है, कैसे जमेगा? म्यूजिक के बारे में मैं ये बोलता हूँ, आपको समझ में आता है म्यूजिक जो आप जज बन के बैठे होंगे? क्यों बैठेंगे? तो ये थॉट ही रॉन्ग है, ये थॉट प्रोसेस ही रॉन्ग है. सो टाइम्स बदल चुके हैं बहुत ज़्यादा. आज ये ज़माना चल रहा है कि जहाँ पर सब चीज़ चलती है, सब कुछ भी चलता है, बस बेच दो यार, बेच दो बस. किसी भी देश में ऐसा नहीं होता जो हमारे देश में होता है कि हम ऐसे लोग, हम म्यूजिक को सोचते हैं कि कोई भी गा देगा यार, उसमें क्या हो गया यार, कोई भी गा, अच्छा तू गा दे, तू बता दे, तू कुछ भी हो जाए, तू जज हो जा, ऐसा हो जाएगा. सो वो ज़माना और इस ज़माने में बहुत फ़र्क है. बट कोशिश हमारी जो थी यही रहेगी कि प्योरिज्म एक्स फैक्टर में हम मतलब जितना हो सके घोट के उसको हम लोग बरकरार रखें. बिकॉज मेरा ये मानना है कि दुनिया में 80% लोग ऐसे हैं जो सच और अच्छा देखना चाहते हैं. 20% लोग हैं जो ट्विस्टेड चीज़ें देखिए उनको मजा आता है, सेडिस्ट मजा आता है कि कुछ गंदा हो रहा है, कुछ गलती हो रही है, कुछ झगड़ा हो रहा है, कुछ मजा आ रहा है, देखो 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 कितना बदमाशी कर रहा है ऐसे. तो कुछ वो 20% को मुझे अपना सामान नहीं बेचना, मुझे 80% प्योरिस्ट को बेचना कि यार यार कितना अच्छा गा रहा है, ओ गॉड मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, ओ गॉड कितना अच्छा गा रही है, इसकी बैकग्राउंड क्या है इसका. वो we want to sell our stuff to those 80% people who are purists and not really care about people who want to see negativity in the shows. मुझे किसी से पर्सनल कुछ नहीं होता, बट सिस्टम को तो ठीक करना पड़ेगा ना कभी ना कभी. जैसे अगर आप कॉकरोच को, घर में कॉकरोच घूम रहे हैं, अब आप कॉकरोच को नहीं मारें, चलो अगर आप जैनी हैं तो नहीं मारेंगे जो कॉकरोच को, बट ये थोड़ी कॉकरोच को चढ़ने देंगे. आप फिर घर साफ करेंगे ना कि कॉकरोच ना आए घर पे. मेरा ये मानना है कि सिस्टम ठीक होना चाहिए ताकि ऐसे जो लोग बेचारे सुबह उठते 4 बजे रियाज़ करते हैं, ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जो मुझे अभी भी आके मिलते हैं कि भैया कैसे रियाज़ किया जाए, वो मेरा हाई पिच नहीं आता, या वो आवाज़ मोटी बहुत ज़्यादा हो रही है, पतली कैसे होगी. हाँ, वो बेचारे इसमें ध्यान दे रहे हैं कि रियाज़ कैसे किया जाए. हाउ वुड दे फील दैट समवन हु कैन नॉट सिंग इज सिटिंग ऑन द जजेस प्लेटफॉर्म एंड जजिंग देम, और समवन हु कैन नॉट सिंग इज एक्चुअली गेटिंग अवार्ड्स इन द बिगेस्ट शो. उन पे क्या बीती होगी? आप सोचिए आप पे क्या बीती, अगर आपसे बहुत ही कम क्वालिफाइड इंसान आपसे बहुत ऊपर दिख रहा हो, जा रहा हो, और कोई किसी को आपत्ति ना हो कुछ भी, और वो आपको उंगली उठा गया, भाई तू क्या है, इसको ये देख वहाँ देख. तो ये सिस्टम थोड़ा सा इंडिया में म्यूजिकली थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सब लोगों को. म्यूजिक बहुत पायस चीज़ है, सबको आती नहीं है, वरना मतलब डांसिंग भी बहुत लोग कर सकते हैं सीख सीख के. म्यूजिक आता ही नहीं, अगर अंदर ना हो सिस्टम में ना आएगा नहीं आपके. किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना. खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, हो तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना.